آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارے محکوم بلوچ قوم کے بہنیں اور بھائیوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پرامن طریقے سے حقوق مانگنے کا جو راستہ چنا ہے اس میں وہ نہ تو مایوس ہو گئے نہ وہ تک گئے. پیدل مارچوں سے لے کر اس ملک کے ہر شہر میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، دھرنا، احتجاج، جلسہ جلوس کرنا اور اس طریقے سے اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے حقوق مانگنا اور اسی راستے میں ثابت قدم رہنا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے جس پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کشمیر کے غم میں نڈال میڈیا، بھارت کے کسانوں کو کوریج دینے والی میڈیا، گورنر کے گاڑی میں بیٹھے کتے کو کوریج دینے والی میڈیا، کراچی میں ایک بلی مر گئی تھی اس کو کوریج دینے والی میڈیا، یہاں کے بھائیوں بہنوں کے آنسوں پر خاموش ہے. طالبان کمانڈرز کے پیچھے پہاڑوں تک جانے والے بڑے بڑے اینکر پرسنز اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے محکوم اور مظلوم لوگوں کے پاس نہیں آتے. یہ ریاست کے پریارٹیز کو، یہ ریاست کے ترجیحات کی عکاسی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں. کشمیر کی بات UN میں کرتے ہیں مگر یہاں پر رہنے والے محکوم اور مظلوم لوگوں کی بات ان کے گھر کے سامنے بھی اگر احتجاج کر کے تو وہ نہیں چھوڑتے اسے. ظاہر سی بات ہے ان کے ان اعمال سے لگتا ہے کہ ان کی ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کشمیر کے وسائل اور کشمیر کے زمین کے ساتھ ہے. کیونکہ یہاں پر بلوچستان اور پختونخوا میں ان کے قبضے نہ صرف وسائل پر، زمینوں پر، بلکہ انسانی زندگیوں پر، اور ان سب کو اپنے مفادات کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کا جو عمل ہے ان سے لگتا ہے کہ اس ریاست کی جہاں بھی جس سے ہمدردی ظاہر کرتے ہیں وہ صرف اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ صرف اپنے قبضے میں آ جائے. بس ایک بار وہ آ گئے تو ان کشمیریوں یا جس کے ساتھ بھی وہ اظہار ہمدردی کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال کریں گے جو ہمارا کیا ہے. ابھی ایک نعرہ لگایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے پورے کرے. اگر ان کے یادداشت ٹھیک ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم کے ذہنی توازن برقرار صحیح ہے تو وہ ایک بار ضرور سوچے کہ انہوں نے کیا کیا وعدے کیے. وعدے کو پورا کرنا ایک بات، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہی مطالبہ بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں. مطالبہ کرنے والوں کو بھی وہ مختلف قسم کی اذیت دیتے ہیں.
ये लोग आईने से डरते हैं। उनको जब भी उनका शक्ल हम दिखाते हैं तो वो घबरा जाते हैं और तशद्दुद पे आ जाते हैं। हमने आज तक, बाज़ लोग कहते हैं ये स्टेट के खिलाफ हैं, बाज़ लोग कहते हैं ये इदारों के खिलाफ हैं। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनको उनका चेहरा दिखाया है। ये खौफ उनको अपने चेहरे से लगती है। हमने तो आज तक एक छोटी सी पत्थर से भी उनको नहीं मारा है। किसी को एक अच्छा काम करने की गैरत दिलाने के लिए जितने भी अल्फाज होते हैं, किसी को इंसानियत का दर्स देने के लिए जितने भी अल्फाज होते हैं, वो मजलूम लोग रो रो के सारे अल्फाज बता चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ लोग अपनी मजलूमियत को और उससे निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रियासत उनके मुतालबात हल करने की बजाय उनको मजीद कुचल डालने की नए नए तरीके सामने ला रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ महकूम कौमों को महकूम बनाया गया है, बल्कि अभी तो यहाँ का हर इदारा भी महकूम हो चुका है, काबिज हो चुका है। कब्जा करने का वसी तजर्बा रखने वाले इन लोगों के सामने हमेशा हमारी बात इंसानियत और इंसानी हुकूक के तराजू में बिल्कुल तवाज़ुन से रखी गई। कभी कभी सोचता हूँ, हम किन लोगों को इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम किन लोगों से मुखातिब होकर हुकूक मांग रहे हैं। अगर हम बेबस लोगों के पास कोई और रास्ता, कोई और जगह होता तो हम कभी नहीं आते। इन लोगों ने इतना अजीब सा रिस्पांस दिया है हर बार, मगर ये लोग बेबस है, इसलिए दर बदर फिर रहे हैं। एक मिसिंग पर्सन खानदान का जो हाल होता है वो शायद हर कोई नहीं समझ सकता है। मेरा खुद एक क्लास फेल होता, फैजुल्ला नाम था उसका, इंतहाई मज़ाहिया बंदा था, हर वक्त मजाक करता रहता था। 2012 में वो गायब हो गए। 2018 में जब पीटीएम बना तो बार बार जब हम उसका नाम ले रहे थे तो 2018 के आखिर में वो अपने घर पहुंचे। 7 साल तक जेल में, जेल नहीं इंटरमेंट सेंटर में मुख्तलिफ अज़ियतें बर्दाश्त करने वाले फैजुल्लाह के मुतालिक आज भी मेरा स्टेटमेंट यही है कि उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था, वो किस चीज़ में मुलविस था। क्यों 7 साल मुसलसल एक माँ के आंसू हमेशा बहाए गए, क्यों एक बाई को तड़पाया गया, क्यों एक खातून को ये अंदाज़ा तक नहीं होने दिया कि आप वो जो एक बलोच बहन ने बैनर उठाया था कि बीवी हो के बेवा, आज तक वो अंदाजा नहीं हुआ। और भी जितने इंटरमेंट सेंटर्स में जिसको पाकिस्तान के अदालत ने भी गलत करार दिया है, उनमें बहुत से लोग पड़े हैं।
यहाँ पर ये लोग किसी पहाड़ के चोटी पर नहीं बैठे हैं बंदूक लेकर। ये एक तस्वीर एक मोबाइल लेकर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने पुरअमन तरीके से बैठे। इन लोगों के मुतालबात को जनमन करार देने के लिए तादाद की ज़रूरत नहीं है। रियासत का हर शहरी, चाहे वो अकेला हो चाहे उसके साथ 10 लाख लोग हो, लेकिन जब वो इंसानी हुकूक का मुतालबा करता है तो वो वैलिड है, वो जेन्युइन है। इन्हीं जेन्युइन मसाइल के हल के लिए हम पश्तून इलाके में जदोजहद कर रहे हैं, बलोच इलाके में जदोजहद कर रहे हैं, सिंध में जदोजहद कर रहे हैं, और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी, और इवन यहाँ पर जिक्र भी किया गया पंजाब के चंद इलाकों में भी। इन सब को हम हमेशा के लिए, सिर्फ आज नहीं, हर वक्त उनके साथ इकट्ठे होकर जदोजहद करना, उनकी गम को अपना गम समझना, ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको हम अपना फ़र्ज समझते हैं, इस दर्द को अपना दर्द समझते हैं। हम हर वक्त इन महकूम लोगों के साथ, उनके जद्दोजहद में भरपूर साथ देंगे, उनके साथ होंगे। और मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में जितने हमारे दोस्त हैं उनको भी यहाँ से ही कहता हूँ कि जब भी वो फारिग हो, वो घर में न बैठे, वो अपने बलोच भाइयों के साथ यहाँ आकर बैठ जाएं। ये दौर है जब मजलूम को बात करने की इजाज़त नहीं है। इस दौर में उनका साथ देना, आप इंसानियत, मज़हब या दुनिया की किसी भी सोच में आप नापे, इससे अच्छी बात कोई नहीं मिलेगी। दुनिया के इंसानों की लंबी तारीख में सिर्फ अच्छे लोग उनको कहा गया जिन्होंने दूसरे इंसानों की खैर की बात की। बलोच के अलावा जितने भी यहाँ पर कौमें हैं, नौजवान हैं, मर्द और ख़वातीन जितने भी हैं, सबको दावत दे कि वो यहाँ पर इस कैंप को मजबूत बनाए। ये जुमला काफ़ी नहीं है, ये महकूम है या मजलूम है, ये फिर शायद हमारी शऊरी लेवल की अक्कासी करेगा कि हमें इतना शऊर नहीं है। अगर हम मसाइल की बात करें तो मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे दोस्त ने इससे पहले भी काफ़ी अच्छे अंदाज से, काफ़ी बेहतरीन अंदाज से, काफ़ी वो टर्मिनोलॉजी जो वफादारों को समझ आ जाती है, उसमें ये बयान किया कि ये हुकूक कौन से दायरा कार में और कौन से तरीके से मांगे जा रहे हैं। पुरअमन तरीके से आईनी हुकूक मांगने वालों को कवरेज न देना और यूएन के दफातर में खड़े होकर कलमे से शुरू होकर और मुसलमानों की बात करना, ये कौन सी मुनाफिकत है। आपको इंसानियत और अपने आप की एक अच्छे मुसलमान होने का जो दावा है, वो इन मजलूमों के साथ इनके मसाइल हल करने में मौजूद है, न कि मौज शोशा करने में। रही पाकिस्तान के फौज की बात, उनके जर्नल रियासत अपने मिजाज को
अपने मिजाज को वो रियासत कहते हैं। जो भी उनके मिजाज के मुताबिक बात न करे तो वो रियासत मुखालिफ बात हो गई। जो भी महकूमों के साथ, मजलूमों के साथ हमदर्दी जाहिर करे तो वो गद्दार हो गया। हमारी तरफ से तो बात क्लियर है, हम कहते हैं इन जालिमों के वफादार नहीं है, न इन जालिम निज़ाम के वफादार हैं। हम हर उस फर्द, इदारे और हर उस टोले के खिलाफ हैं और उनसे गद्दारी करते हैं जो यहाँ पर जुल्म करते हैं, जो इंसानों को तकलीफ देते हैं। हमारे बलोच मजलूम और महकूम बलोच के सामने खड़े होकर मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मैं इनकी मसाइल की बात करूं या उन टुकड़े टुकड़े पश्तूनख्वा के बच्चों की बात करूं जिनमें से अक्सर की लाशें भी नहीं मिली। लापता अफराद ये एक बड़ा मसला है। इससे अलावा वहाँ पर तो लैंड माइन्स तक गांव में बोए गए हैं, जिससे हमेशा छोटे बच्चे उनके शिकार होकर हाथ पांव से महरूम हो जाते हैं। और रोज़ाना के बुनियाद पर आम लोगों को मार कर ये आइन किस चीज़ के लिए बनाया गया है? ये अदालतें क्या सिर्फ इसके लिए हैं कि इसमें हमारे ऊपर जो फेक FIRs है उसका प्रैक्टिस हो? अम्मा कौमों ने कभी इनसे एक ऐसी वो नहीं देखी जिसे हमारी जो गम है, जो परेशानी, उसका मदावा हो सके। ये तो मजीद बढ़ा रहे हैं। मजलूम कौमों को, महकूम कौमों को एक ही रास्ता बचा है कि वो आपस में इत्तेहाद करे और अपनी बात करे। ये जद्दोजहद इखलास और शऊर मांगती है। ये बड़े बड़े नामों से नहीं, इस जद्दोजहद के लिए अपने आप को कमर बस्ता करने से हासिल होगी। और जहां तक स्टेट की जो पॉलिसीज है, फेस चेंजेस से आज तक हमने उसमें कोई फर्क नहीं देखा। हम तो, हमारा इतना उम्र नहीं है, लेकिन जब से इन चीज़ों को जानते, मुशर्रफ, फिर कियानी, फिर राहील शरीफ, फिर बाजवा भी, इनके फेस चेंज से हमने कोई पॉलिसी चेंज नहीं देखा। मैं किसी भी सियासी पार्टी को टारगेट करके बात नहीं करूंगा। हम मोहतात है, इसलिए मोहतात है कि एक उम्मीद रखते हैं कि ये लोग शायद हमारी बात करें। इसलिए अगर उनमें गलतियां भी मौजूद होती हैं, हम बेबस लोग उन गलतियों से भी अपने मुंह करते हैं। वरना किसी भी हुकूमत में भी हमने ये पॉलिसी चेंज नहीं देखा। बस जो भी अपोजिशन में है वो हमारा दोस्त होता है, जो हुकूमत में है वो बात भी नहीं सुनते। सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन्स की बात करने वाले जब इख्तिदार में आ जाते हैं तो उनको बारहा याद दिलाने पर भी वो ये बात दोबारा नहीं करते। यहाँ पर जितने भी सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं, वो इस छोटे से कैंप में आकर छोटे नहीं होंगे, बड़े हो जाएंगे इससे। उनको यहाँ इनके साथ बैठकर इनकी बात करनी चाहिए। हम हर वक्त तैयार हैं, जब भी हमारे इन बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत हो, चाहे जितना भी सख्त वक्त हो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे
اور جو بھی مشکلات ہو اس کے ساتھ اکٹھے ہو کر جھیلیں۔ محکوم اور مظلوم دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہے وہ ہماری طرف سے یہ اظہار یکجہتی قبول کرے کہ ہم دنیا کے ہر محکوم اور مظلوم کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں۔ ہاں، ہر ایک کی اپنی سرکل ہوتی ہے جس میں وہ اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے۔ باقی ہمدردی ہر کسی کے ساتھ، ہر مظلوم کے ساتھ۔ تمام مظلوموں اور محکوموں کے لیے کام کرنے والے تنظیموں کو یہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے سرکل میں کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے، ان کو ٹائم نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے، کم سے کم ایک دوسرے کا تائید، جو بہت ہی آسان بات ہے، وہ مسلسل جاری رکھے۔ ان کو اس طرح کی اتحادیں اور اتفاقیں توڑنے کا تجربہ فرنگیوں سے وراثت میں ملی ہے۔ ہمارے حالات بدلے نہیں ہیں۔ ہمارے پشتونخوا کے سیاسی لیڈران 1930 میں فرنگی کے دور میں سیاسی جیل کاٹ رہے تھے۔ 2021 میں بھی ہمارے علی وزیر سمیت کافی سارے ہمارے جو سیاسی رہنما ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ فیس چینج نہیں، یہاں پر پالیسی چینج، نظام چینج چاہیے، ورنہ مظلوم ہمیشہ کے لیے مظلوم نہیں رہے گا، نہ ظالم ہمیشہ کے لیے طاقتور رہے گا۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو، جو عوام، جو علاقے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہ ہو جب جبر کا نظام ٹوٹے تو سب سے زیادہ قیمت وہ ادا کرے۔ ان کو ان مظلوم اور محکوموں کا ساتھ آج دینا چاہیے۔ اور تو ہمارے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم اپنے دیگر جو محکوم مظلوم کو میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار، یکجہتی کا اظہار کرے، مگر ہمیشہ کے لیے جب بھی ان کا کہیں پر بھی ایک جمگٹھا دیکھا ہے ہم نے وہاں پر حاضری لگائی ہے۔ بلوچ مسنگ پرسنز جو کوئٹہ میں ہے وہاں پر بھی جب ہم جا رہے تھے تو راستے بند کر دیے۔ جب آپس میں محکوم لوگ لڑتے ہیں تو وہ اسلحہ بھی دیتے ہیں کہ آپ لے لیں، لڑیں، مگر وہ جب اتحاد کے لیے آئیں گے تو راستے بند کر دیں گے۔ یہ ان کی پالیسی ہے، ان کی پالیسی کو شکست اتحاد اتفاق سے دیں گے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو مطالبات ہے جتنے بھی یہاں پر ابھی بیان کر دیے گئے، ہم بھی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کیمپ کے مطالبات کو نہ صرف تسلیم کیے جائے بلکہ حل کیے جائے، اور اس کے حل کے لیے اعلیٰ سطح پر ایک عملی کوشش ان کو دکھا دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔